Dear students, I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Brahmdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 12th, subject chemistry, chapter 3, chapter name is chemical kinetic, part 2. The previous video I discussed rate of reaction and depend the numericals. Dear students, today I discuss factor affecting rate of reaction. तो dear students, factor affecting of rate of reaction इजल जो होते हैं वो कई टाइप्स के होते हैं. नंबर 1 इसमें देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन the rate of reaction depend in following factor. नंबर 1 है concentration of reactant. concentration of रिएक्टेंट. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में हम आपको डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तो डियर स्टूडेंट देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज ऑन increasing the concentration of reactant when the concentration of a reactant is increased कॉमा लगाएं the probability नहीं आएगा डियर स्टूडेंट. the possibility of molecular collision increase full stop consequently the rate of reaction increase. Number 2 temperature. टेम्परेचर क्या है देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन usually increase on increasing the temperature
temperature for most of the homogeneous reaction reaction the rate become double to triplet for each 10 degrees Celsius rise in temperature. ओके, ज़रा एक बार कंफर्म करते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है. When the concentration of reactant is increased, the possibility of molecular collision increase, consequently the rate of reaction increase. Okay. Next point है temperature. The rate of reaction usually increase on increasing temperature. Rate of reaction increase होता है temperature increase होने के साथ साथ. For most of the homogeneous reaction और homogeneous reaction में the rate become double or triple for each 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर. रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट है वो डबल और ट्रिपलेट हो जाता है कब? 10% टेम्परेचर में राइज होने पर. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट, प्रेजेंस ऑफ कैटालाइसिस. द प्रेजेंस ऑफ a catalysis increase increase on increasing the rate of reaction because the activation energy of the reaction decrease full stop. The enable a large number of molecule to attain this energy and cross the energy barrier.
ओके, इसमें बताया जा रहा है द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालाइसिस, कैटालाइसिस के प्रेजेंस में इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, कैटालाइसिस इंक्रीज होने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, बिकॉज क्योंकि द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की डिक्रीज होती है। द इनेबल अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टू अटेंड दिस एनर्जी एंड क्रॉस द एनर्जी बैरियर, क्योंकि उसके एनर्जी मॉलिक्यूल की एनर्जी वो क्या करती है, बैरियर क्रॉस करती है। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग है रेट लॉ। रेट लॉ, ओके, तो देखिए द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन the mathematical expression which describe the experimentally absorb dependence of the reaction rate on the molar concentration of the reactant is called the rate law। अब देखिए जरा डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स, द रेट of reaction is experimentally found to be directly proportional to the molar concentration of the reactant। okay, the rate of reaction experimentally found to be directly proportional to the molar concentration of the reactant। okay, तो नई लाइन से देख सकते हैं इसके डेरिवेशन को। नई लाइन से देखिए, लेट अस ए एरो बी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ए प्लस बी करके लिख लो डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ए एरो बी, एरो से अगले है प्रोडक्ट, ए की कंसंट्रेशन ए, बी की कंसंट्रेशन बी, तो देखिए रेट प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स
वाई, इसे हम क्या लिखते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। तो डी एक्स अपॉन डी टी के एक्स और बी की पावर वाई। ओके, तो नई लाइन से लिख सकते हैं द पावर ऑफ एक्स एंड वाई में और may not be the same as the stoichiometric coefficient a एंड स्मॉल b, ये रहा जो आपका a और b कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट प्रेजेंट इन द बैलेंस रिएक्शन। ओके, और के क्या चीज़ है, रेट कांस्टेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है रेट कांस्टेंट। तो व्हाट इज द रेट कांस्टेंट? द रेट कांस्टेंट of a reaction is equal to the rate of reaction when the concentration of each of the reactant is unity. Let us A plus B plus C arrow product concentration ABC। तो हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन यानी प्रोपोर्शनल ए बी सी, कंसंट्रेशन ए बी एंड सी। नहीं, इसे अदर कुछ मान लो, पी क्यू आर मान लें, पी क्यू आर। ओके, तो रेट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसको हटा दें, के आ जाएगा, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू, सी की पावर आर। ओके, तो वेयर के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कंफर्म हुआ, पी क्यू आर इज इक्वल टू the concentration of reactant A, B and C
ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीट। देखिए फिर, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, किसे इक्वल होता है? रेट ऑफ रिएक्शन के। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ईच द रिएक्टेंट इज यूनिटी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे होनी चाहिए? यूनिटी होनी चाहिए। लेट अस, मान ही लिया है, डेरिवेशन है, कन्फर्म है। तो नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। दीज आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक हैं रेट कांस्टेंट के। नंबर 1 है हायर द वैल्यू of small k greater is the rate of k at क्या लिखा? रेट ऑफ द रिएक्शन आएगा डियर स्टूडेंट, रेट ऑफ द रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, अ पर्टिकुलर reaction has a definite value of k at a particular temperature. थर्ड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट for a particular reaction increase with an increase in temperature. Fourth point, the rate constant does not depend upon the initial concentration of reactant. Fifth point है last, its unit depends upon the overall order of reaction. एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। इसके निम्नलिखित कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 1, हायर ऑफ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू अगर हायर होती है, ग्रेटर इज द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन भी कैसा होगा? हायर होगा।
तो के की वैल्यू भी हायर होगी। अ पर्टिकुलर रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ के एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। पर्टिकुलर टेम्परेचर पर के की वैल्यू डेफिनेट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन इंक्रीज होने पर उस टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है द रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड। रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर। लास्ट है इट्स यूनिट डिपेंड अपॉन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट के यूनिट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, आता है द सम ऑफ पावर ऑफ द concentration of the reactant in the rate law expression is called order of reaction. The sum of the power of concentration की जितनी भी पावर होती है उसे सम करते हैं ऑफ रिएक्टेंट की इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन के समकक्ष इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। लेट अस A plus B arrow C plus D. Dear students, this is known as reactant and this is known as product. Small a concentration, small b, small c and small d. ओके तो नई लाइन से देखिए रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ए, इसकी पावर क्या मान लें हम x और b की पावर बाई, तो dx अपॉन dt लिख सकते हैं इसे इजिकल टू के a की पावर x और b की पावर y। तो नई लाइन से लिख सकते हैं सम ऑफ दीज exponents x plus y gives the overall order of a reaction with respect to the reactant A and B. Okay, this topic is complete. Next heading is question है dear students, calculate the overall order of reaction। हमें order of reaction कैलकुलेट करना है विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन, रेट दिया हुआ है रेट के इजल टू ए की पावर 1/2 बी 3/2। ओके अब हमारे पास में देखिए फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं रेट इजल टू के ए की पावर 1/2 और बी की पावर 3/2। ओके तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है
rate order of reaction is equal to क्या होता है फॉर्मूला के ए की पावर x और b की पावर y। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पावरों को ऐड करते थे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, x प्लस वाई। तो x ये रहा, y ये रहा हमारा पास में, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू x की वैल्यू 1/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 2 एलसीएम है। ओके, क्या आएगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4/2 2 इज इक्वल टू 2। ओके, आंसर। अब हम क्या कर रहे कैलकुलेट करेंगे। अब सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखिए इसका। सेकंड पॉइंट में हमारे पास में क्या दिया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट। रेट क्या है हमारे पास में, के ए की पावर 3/2 और बी की पावर -1। फॉर्मूला ये होता है x प्लस वाई, कन्फर्म हो गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3/2 -1, क्योंकि प्लस करते हैं हम, प्लस -1/1 डाल दो एलसीएम लेने के लिए। क्या हो जाएगा 1 यानी 2 एलसीएम आ गया, क्या बचेगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/2 आंसर। ओके, नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल है। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज गिवन 2a + b एरो c। रेट दिया हुआ है के ए की पावर 2 और b की पावर 1/2। तो डियर स्टूडेंट हम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास में रिएक्शन है 2a + b एरो c। ओके, रेट क्या दिया हुआ है, के ए की पावर 2 बी की पावर 1/2। ओके, अब देखिए द ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट ए कितना है हमारा, ए इज 2, कितना दिया हुआ 2, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट B इज 1/2। तो न्यू लाइन से देख सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला इस टाइप से, के ए पावर 2 बी पावर 1/2। ओके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में क्या है, x + y लिखते थे फॉर्मूला। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा x + y। तो कहीं नहीं लिखेंगे, नीचे न्यू लाइन फिर लिखेंगे ये स्टेटमेंट इक्वल टू 1 यानी कितना है 2, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में x की 2 और y की 1/2 अपॉन में 1 2 कितना आएगा 4 + 1 5/2। ओके, आंसर। दिस टॉपिक इज कंप्लीट। डियर स्टूडेंट्स, कृपया ध्यान दें, वीडियो सीन करने के बाद उसे लाइक और डिसलाइक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। ओके।